Welcome student in our YouTube channel Science in Rudra. I Dhananjay Singh going to take you in 15 MCQ and some one-liner question that is launched by my CBSE guide for class 12th, electrostatic potential and capacitance. As you know that CBSE has been changed the pattern of the board exam and it has launched a MCQ pattern of the first book, so that due to this COVID-19 students have no any pressure to summarize the derivation of physics and many conceptual problem which can be very difficult to solve by the student. On the regard of this problem, CBSE has been changed its schedule and pattern of examination, so that in the month of the November schedule they can only participate in MCQ type of questions. So student, in this video I am going to solve some MCQ question, and if you are the new viewer in this channel, please subscribe, like and comment what you are feeling after solving the question and what you have learned from the theory of the physics from myself. Being a student of ECC Ewing Christian College, I have some experience of physics as my subject in third year, and I am most important subject has been in my 10+2 level, and I have given some Olympiads about my subject. I have a keen interest in physics, so please continue with us. Take it as a enjoyable physics class. Now the first question is going to the dielectric constant K of an insulator will be. So what do you mean by the dielectric constant? It is a ratio of permittivity of the vacuum to the medium denoted by K, and the insulator dielectric constant is value 4. We have to learn some question that are very fix, यानी ऐसे ऑप्शन या ऐसे क्वेश्चन हमें रट के रखना है जो बिल्कुल फिक्स होते हैं. जैसे ये आपका है इंसुलेटर का के जो होता है वो 4 होता है, बिकॉज के इज़ द डाइलेक्ट्रिक एंड द वर्क ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू रिड्यूस द फोर्स बिटवीन द चार्जेस. अगर के हमारा डाइलेक्ट्रिक है तो वो क्या करेगा, हमारे मीडियम और जो वैक्यूम का रेशियो होता है उस परमेबिलिटी को इसका मान के रूप में जाना जाता है, और ये अगर चार्ज के बीच में रखा जाता है तो जो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो रिड्यूस कर देता है. फर्स्ट पार्ट रख दिया, जैसे कि एक ऊपर दिया के. अब ये के जो हम बीच में रख रहे हैं दोनों चार्ज के बीच में, अगर ये इंसुलेटर होगा तो 4 टाइम्स फोर्स को कम कर देगा. एयर और वैक्यूम में जो आपका के होता है वो नियर अबाउट 1 होता है. इसके कारण जो है फोर्स मैक्सिमम हम एक्सपीरियंस करते हैं. अगर वाटर में डाल देंगे तो मैक्सिमम 80 टाइम्स डिक्रीज़ कर जाता है. वैसे इंसुलेटर की बात किया जाए तो फोर्सेस विल बी डिक्रीजेस 4 टाइम्स. सिंपल सी बात है, के रखने से फोर्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और के आपका डिपेंड करता है मीडियम विच वी हैव टेकन वेयर द सिस्टम ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड. Now we discuss the third question. If the charge Q naught is there in the electric field caused by several point charge Qi, the potential energy of Q is given by. First of all, we know the potential energy of the system of charge is what? V is equal to K Q1 Q2 upon R.
This is the general formula of the potential energy of the system of charges Q1 Q2 upon R। तो Q1 यहाँ Q0 दिया है और जो आपका Q2 है वो क्या है, QI है, यानी डिफरेंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो एक चीज़ जानिए कि जो सिस्टम ऑफ चार्ज होते हैं उनमें जो इंडिविजुअली फोर्स लगता है वो किसी अन्य चार्ज के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। सिस्टम ऑफ चार्ज के बीच में अलग से कोई अगर हम चार्ज पुट करते हैं तो वो अपना जो फोर्स है वो वेक्टर एडिशन ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, जो आपने कूलॉम्स लॉ में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सीखा है। तो जो इसका आंसर वो आपका बनेगा वो बी ऑप्शन फिर से होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं होगा तो Q1 Q2 जो समेसन है आर स्क्वायर तो वो सीधे सीधे फोर्स हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एनर्जी की। तो एनर्जी सिंपल सी ट्रिक देखिए, यहाँ MCQ है तो थोड़ा ट्रिक भी हम अप्लाएंगे। एफ का जो फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 आर स्क्वायर होगा। तो ये फोर्स जो होता है वो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन एनर्जी यानी W इज इक्वल टू वाट, F इंटू डी। E बराबर W एंड W बराबर एफ डी माने फोर्स और डिस्टेंस यहाँ पास हमारा R दिया है, तो जब हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ जो डिस्टेंस है वो R का काम कर रही है, तो फोर्स हमारा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, तो Q1 की जगह Q0 है और Q2 की जगह QI है, यानी डिफरेंट चार्जेस QI माने I का मान 1 2 3 4 रखेंगे तो ये डिफरेंट चार्जेस होंगे। तो आर स्क्वायर का मतलब है डिस्टेंस ऑफ चार्जेस फ्रॉम द सेपरेशन, जहाँ इनको रखा गया है, यानी Q0 की दूरी I1 I2 I सारे R डिस्टेंस पे है। तो कैंसिल कर देंगे, एक और कैंसिल हो जाएगी, तो सीधे सीधे हमारा यहाँ ट्रिक से देखा जाए तो ये ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन गलत है, फोर्स है। थर्ड ऑप्शन में जो है आपका क्या लगा है, R³ लगा है, बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन इसलिए गलत है कि यहाँ पास 4 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो इस तरह आप MCQ में ऑप्शन एलिमिनेट भी करते हैं एंड वी कैन ईजिली फाइंड द आंसर बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, for a parallel plate capacitor and a dielectric of dielectric constant K, when a dielectric material is inserted between the plates while the potential difference between the plate decrease by a factor K। अब देखिए कंडीशन का ये क्वेश्चन है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने बनाया है तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को रखेंगे तो उस कैपेसिटेंस में K को रखने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो हमारा K होता है वो दो सिस्टम ऑफ चार्ज के बीच में जाके उन दोनों के फोर्स को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, बाकी और कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर हमारा जो K है वो बहुत ही हाई वैल्यू का होगा तो फोर्स को डिक्रीज़ करेगा, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पास फोर्स का कोई ऑप्शन नहीं। देखिए क्या होगा, द चार्ज वेरीज कॉन्टीन्यूसली। K रखने से चार्ज वेरी करेंगे नहीं, फिक्स रहेंगे ना। चार्ज इज इंक्रीज, इम्पॉसिबल ऑप्शन है, कभी चार्ज बढ़ा ही नहीं सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितने चार्ज क्रिएट हुए हैं उतने ही चार्ज रहेंगे। एडिशनली नो चार्ज विल बी क्रिएटेड एट द सिस्टम ऑफ द कंसिडरेशन, उस कंसिडरेशन सिस्टम में जितने चार्ज हैं उतने ही रहेंगे। K रखने से कोई डाइलेक्ट्रिक रखने से कोई चार्ज इंक्रीज़ नहीं कर जाते। लेकिन अगर कह दें कि अगर मेटल का हो जाए उसको रखने से क्या होगा, तो जब देखिए कैपेसिटर के अंदर मेटल को हम डाइलेक्ट्रिक के रूप में यूज़ करेंगे ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट चार्ज मेटल के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। और ऑलरेडी कैपेसिटर में हम दो पैरेलल प्लेट मेटल वायर का या मेटल प्लेट का यूज़ करते हैं।
तो when metal is connected to metal it will be short circuited, so it is impossible that the capacitor should be of the metal, it should be the insulator, air, paper। तो हम जितने भी कैपेसिटर बनाते हैं उसमें पेपर वगैरह, प्लास्टिक वगैरह या माइका वगैरह की शीट वगैरह रखते हैं, मेटल का कोई भी मीडियम नहीं रखेंगे। तो इसका मैंने सजेशन दे दिया कि अगर मेटल का डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो इनफाइनाइट चार्ज की वजह से वो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी भी गलत हो गया। बताती हैं द चार्ज इज़ डिक्रीज्ड, ना इंक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ भी नहीं होगा ना, क्यों डिक्रीज़ होगा, जब इंक्रीज़ नहीं हो रहा तो डिक्रीज़ नहीं होगा, चार्ज कैसे डिक्रीज़ होगा। तो डी ऑप्शन हमारा जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ना वो वेरी करेंगे, ना घटेंगे, ना बढ़ेंगे। दैट इज़ द राइट ऑप्शन इज़ डी विद एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो या जानकारी आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट मी एंड शेयर मी व्हाट यू आर फीलिंग आफ्टर solving and after visualizing this type of topic as a physics. Your comments, your likes and your effort will boost me in future to make again a such type of video in physics. आपका जो कमेंट है, आपके जो लाइक्स हैं, उनकी वजह से प्रोत्साहित होकर मैं दोबारा वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। एंड इफ़ द आउटपुट इज़ नॉट अप टू मार्क, आई विल नॉट मोटिवेटेड एंड हैव नो एनी टाइम for your dear students to make such video. So be keep in your mind, for my time being very important as a teacher and I also preparing for some exams, but it is keen interest in my physics and keen interest as a teacher teaching in the school. For their request I am making such type of special time and making video so that all of the student can get a better result for a little bit of my effort. Now again we proceed to the next question. Electrolytic capacitor is marked 4 microfarad and 220 volt rating. It can be used in a circuit where the PD potential difference across the capacitor may be. This is a general question कि कैपेसिटर अगर 8 माइक्रोफैरेड का है तो 220 रेटिंग पे अगर इसको लगाया जाता है तो बताइए पीडी के अक्रॉस कितना कैपेसिटर का होना चाहिए। देखिए जनरली ये 200 ही होगा। ऑप्शन विल बी 200 वोल्ट। 200 वोल्ट इसलिए होगा जो हमारा रेटिंग होता है, हमारा जो रेटिंग होता है कैपेसिटर का 220 वोल्ट पे होता है, हाउस होल्ड वोल्ट पे होता है। अगर वो वोल्ट 220 को क्रॉस कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसके कारण कैपेसिटर डैमेज हो सकता है। तो जो जनरली हमारा वोल्ट होना चाहिए 220 के रेंज का ही होना चाहिए, रेटिंग वैल्यू होना चाहिए। 250 तक तो टॉलरेट करेगा, लेकिन उसके बाद जैसे 300 का ऑप्शन है, 1500 इन वोल्ट पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होके एक थोड़े से ही आवाज़ में फट जाता है। तो हमें एक समझ लीजिए क्रैकर की थोड़ा आवाज़ आती है कि समथिंग हैज़ बीन डैमेज एंड शॉर्ट सर्किटेड व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीजेस। तो जनरली हम बात करते हैं जो हमारा क्यू होता है इन द कैपेसिटर प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतने चार्ज क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। तब इसी को हम इक्वेट करके बताते हैं सी वी। इसमें मतलब क्या होगा, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब बात समझिएगा कि अगर जो हमारा वोल्टेज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सी का तो मान घट जाएगा, लेकिन उस समय होगा क्या, हमारा जो चार्ज है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो वी बढ़ने से चार्ज बढ़ेगा और चार्ज बढ़ेगा तो सी पे क्या पड़ेगा, सी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। We have to keep in mind first type of reading. We proceed to next question. Electric field magnitude E at point inside outside respectively charge spherical conductor having
चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। देखिए स्फेरिकल का है सिंपल सा, जो आप डेरिवेशन कराया जाता है, लेकिन एमसीक्यू के चक्कर में डेरिवेशन पे फोकस नहीं किया जा रहा है। थोड़े देखा जाए तो नुकसान ही है, लेकिन एमसीक्यू पे डेरिवेशन का यूज़ भी नहीं है, बट हमें थोड़ा तो समझना ही पड़ेगा। देखिए इसको समझते हैं। ये हमारा स्फीयर है, इट इज़ अवर स्फीयर, और हम इस स्फीयर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए हैं। सॉलिड स्फीयर है। अब कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड की बात कर रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो आपके स्फीयर जीरो होता है, यानी स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी, और बाहर क्या होगी, वो एक पॉइंट चार्ज के लिए रिड्यूस फॉर्म में होगी। तो यहाँ पास देखिए जीरो, कैपिटल क्यू अपॉन आर, 1/4 कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पास जो ऑप्शन है लेस देन जीरो, 1/4 क्यू अपॉन, देखिए जो बेटर ऑप्शन दिख रहा है, हम इनमें से सी को समझ रहे हैं। इस छोटे जगह से कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, पॉजिटिव चार्ज, इसको स्मॉल ही लेना पड़ेगा, कैपिटल क्यू ना लेंगे। और जो आर दूरी होगी दैट इज़ द कैपिटल आर, और यहाँ से हम जो दूरी लेंगे आर, वो हम स्मॉल आर लेंगे फ्रॉम द स्फीयर। स्फीयर से स्मॉल आर की दूरी पे लेंगे, तो वहाँ पास जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एज अ पॉइंट चार्ज के माध्यम से आएगा। यानी कैपिटल क्यू ना लेके, पूरा कैपिटल क्यू ना लेके, हम स्मॉल एरिया पे स्मॉल चार्ज क्यू की बात करेंगे, और उसी आर स्क्वायर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जो हमारी आउटसाइड बनेगी। लेकिन जो इनसाइड होती है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो जीरो होती है। तो अब यहाँ देखिए हमारा पहला ऑप्शन तो जीरो वाला मैच कर रहा है, लेकिन जो उसका दूसरा विकल्प दिया है वो दिया है 1, यानी के क्यू कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर होगा नहीं, गलत हो गया। बी ऑप्शन में उसने इनसाइड की बात ही नहीं किया है, तो वो भी गलत है। और उसके हिसाब से सेकंड पार्ट का भी जो इन्होंने कहा है इन आउटसाइड क्या होगा, वो भी गलत हो रहा है। सी वाला तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन लेस देन जीरो कह रहा है। अब यहाँ से देखिए डी कह रहा है ग्रेटर देन जीरो 1 बाई, यानी के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल क्यू आर स्क्वायर जो ऑप्शन में, वो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन जो आपका सी ऑप्शन है वो सूटेबल है, बेस्ट है इन सभी ऑप्शनों में से। तो ये हमारा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए 6 ऑप्शन है, व्हाट इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कोई टेस्ट चार्ज को मूव कराएं तो वर्क डन क्या होगा। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो हमें वर्क डन कराना है, उसमें जो पोटेंशियल होगा उसी के माध्यम से हमें वर्क डन लाना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी होता है। तो वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, वी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, वी ऑलरेडी नो दैट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस द चेंज ऑफ पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, बिकॉज in equipotential surface all the point have the same volt or potential, then the change in the same value will get zero। सीधी सी बात है यार, पोटेंशियल सेम है तो हर पॉइंट पे जो v का डिफरेंस आएगा जीरो आएगा। क्यों आएगा, तो सेम वैल्यू का जो डिफ्रैक्शन है वो जीरो ही आना है डिफरेंस उसका। यहाँ से जो नेट आएगा वो जीरो आएगा, तो पूरा कर देंगे जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया?
तो वर्क डन हमारा 0 होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे v का जो मान होता है 0 होता है। तो जब v 0 हो गया तो w 0 हो गया, तो वर्क 0 हो गया। क्लियर। Now the seventh question, the figure shows the field line of positive charge is the work done by the field moving a small positive charge from Q to P is negative और पॉजिटिव। अब यहाँ पास देखिए बात कर रहे हैं वर्क पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब ये कंडीशन क्या दे रहे हैं समझिएगा। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर हैं और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q से P की ओर चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक छोटा पॉजिटिव चार्ज है वो Q से P की ओर चलेगा। तो बताइए हमारा वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन हमारा क्या होगा बोलिए, हमारा वर्क निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि जो चार्ज हैं वो किसी फोर्स के विरुद्ध और एक और फोर्स के माध्यम से मूव कर रहे हैं। क्योंकि एक खुद का पॉजिटिव चार्ज है तो खुद का फोर्स लगा रहा है, और जो आपका कैपिटल है ये खुद का फोर्स इधर लगा रहा है और ये इसको फोर्स लगा रहा है। तो एक चीज़ बताइए, फील्ड मैक्सिमम इधर है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और हल्की हल्की फील्ड इधर है जो स्मॉल क्यू के द्वारा है और ये पॉजिटिव के द्वारा है। तो नेट जो हमारा वर्क होगा वो इधर ही होगा, यानी फोर्स इधर लग रहा है इस कैपिटल क्यू चार्ज के द्वारा, और जो पॉजिटिव पी पे है चार्ज वो फोर्स इधर लगा रहा है। तो एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है। तो अल्टीमेटली बात समझिएगा, बहुत स्पष्ट करने जा रहा हूँ। जो पी चार्ज है उसका मान बहुत ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है। तो वो छोटे चार्ज यानी क्यू चार्ज, ये पी मैक्सिमम चार्ज है, ये जो क्यू चार्ज है इसका वैल्यू कम है। इसमें लिखा भी है ना, देखिए लिखा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, यानी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू से पी पे जाएगा, और पी पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो वो पॉजिटिव चार्ज छोटे पॉजिटिव चार्ज पे अपना फोर्स लगा के नेट उसको इधर धकेलेगा, उधर धक्का मारेगा, लेकिन वो जाने का प्रयास कर रहा है ऐसे, वो बल लगा रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे, बल लगा रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे। तो इस केस में क्या होता है, वो निगेटिव वर्क डन होता है। तो जब निगेटिव वर्क डन होगा तो ब्रेक लगता है ना, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी बॉडी पीछे की ओर रुकती है, लेकिन उस समय हम आगे ही एक्सीलरेट करते हैं। सिंपल सी बात है, क्लास 9 में पढ़ाया गया है, रिटार्डेशन वाला केस है। तो उस रिटार्डेशन को यहाँ लगाइए, तो छोटा चार्ज आगे बढ़ेगा, बड़ा वाला उसको धक्का मार के बाहर कर रहा है, तो नेट तो बाहर ही निकल रहा है ना। तो जब वो नेट बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि वो रुकने का प्रयास करेगा, जिसके कारण निगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि वो जो बाहर वाला है वो मैक्सिमम फोर्स उस अंदर पी पॉइंट पे नहीं लगा पाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a charge q is moved from point A above a dipole moment p to a point B below the dipole equatorial plane with acceleration, find the work done in the। देखिए वर्क डन का क्वेश्चन फिर से आ गया है अगेन। तो एक चार्ज आपका -1 प्लस एक डाइपोल बना रहा है, तो जो वर्क डन हमें निकालना है वो क्या निकालना है, ए से लेके बी तक, ए से बी पे वर्क डन करना है। चलिए भाई वर्क डन को समझते हैं, पोटेंशियल को समझा जाए। तो देखिए जो नेट पोटेंशियल है वो क्या होगा, पहले ये बताइए। ये इक्विपोटेंशियल बन रहा है ना, जब डाइपोल है वो इक्विपोटेंशियल बनाएगा। कीप इन माइंड एंड नोट इन योर कॉपी। स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज बी इन द डाइपोल कंडीशन। इन डाइपोल कंडीशन इक्वेटोरियल लाइन हैज़ द पोटेंशियल 0।
हमारा ये जो फार्मूला है इक्वेटोरियल का है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इक्वेटोरियल में क्या होती है कि पी अपॉन आर क्यूब, वेयर पी इज़ द डाइपोल। और एक्सियल में क्या होता है, यहाँ डबल हो जाता है। तो एक्सियल के केस में 2p अपॉन आर क्यूब होता है, और जो हमारा इक्वेटोरियल होता है उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या होता है के दैट इज़ 1/4πε0 के कांस्टेंट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। तो 2p अपॉन आर क्यूब ये एक्सियल का है, लेकिन p अपॉन आर क्यूब जो मैंने पहले लिखा वो आपका इक्वेटोरियल है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होती है, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो इक्विपोटेंशियल पे सेम रहेगा। तो यहाँ का इक्विपोटेंशियल ऐसे होगा, तो नेट जो v निकलेगा वो 0 हो जाएगा। जो पहला हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के द्वारा पॉइंट ए पे बनेगा तो क्या बनेगा, +q अपॉन d। नेक्स्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, -q अपॉन d। तो दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या है, इक्वल अपोजिट है। तो नेट तो 0 हो गया, जब v 0 हो गया तो वर्क 0 हो जाएगा। तो यहाँ पास हमें लिखना होगा कि वर्क डन विल बी 0 बिकॉज v इज़ प्रोपोर्शनल टू q by d, and positive and negative charge make the dipole, and in the dipole electropotential surface will be created। v आपका 0 होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे v 0 होता है, तो v 0 तो वर्क 0 होगा। देखिए 26 मिनट हो गए हैं, अभी फटाफट लाइक्स कमेंट्स नहीं आए हैं। आप कंटिन्यू लाइक कमेंट्स करते रहिए, हाउ यू आर फीलिंग एंड हाउ यू आर रियलाइजिंग द क्वेश्चंस दैट दे आर मच इम्पॉर्टेंट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। द डाइलेक्ट्रिक current in the atmosphere due to small conductivity of air known to be इतना 1800 एम्पियर की हवा में करंट की बात कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग करंट ऑन एवरेज ओवर ग्लोब। वाई देन डज द एटमॉस्फेयर डिस्चार्ज इटसेल्फ कंप्लीटली ड्यू टू कोल्ड बिकम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल इन द वर्ल्ड गिव द एटमॉस्फेयर चार्ज। देखिए ये थंडरिंग होता है, जो बिजली कड़कती है उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पास। ऐसा क्या होता है कि जो आपका बिजली है कड़कती है तो उसमें 1800 एम्पियर का करंट बनता है। अब देखिए 1800 एम्पियर का मतलब ये है कि तू जहाँ गिरेगा वहाँ तो पूरा जो है भूकंप ही आ जाएगा, फट जाएगा, जिसको बिजली गिरना कहते हैं। यहाँ पास 30 एम्पियर में तो आपका देखिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े आपके कारखाने चलते हैं। आपका निजी जो समरसेबिल होगा 5-6 एम्पियर 8 एम्पियर पे काम करता है। 1 एम्पियर के अंदर आपकी LCD टीवी है, फ्रिज वगैरह 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर पे काम कर रही हैं। तो बड़े बड़े उपकरण तो आपके 10 एम्पियर पर ही सीमित हैं। तो जब ये 1800 एम्पियर करंट हो जाएगा तो हमें लगता है जहाँ गिरेगा वहाँ की तो मिट्टी पे ज्वालामुखी आ जाएगी। इतनी बड़ी बात कर रहा है, लेकिन ये जो बात है ये आपका कंसेप्चुअल है कि जब बिजली बनती है ड्यू टू चार्ज पार्टिकल ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में जब पार्टिकलों का बीच में फ्रिक्शन होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द एयर, दे आर चार्ज्ड। पहले ही चैप्टर में बताया गया है कि जब मूवमेंट होगा पार्टिकल चार्ज होंगे, तो चार्ज होंगे तो उनमें आपके पॉजिटिव नेगेटिव इंड्यूस चार्ज बनेंगे। ये क्लाउड हो गए आपके। क्लाउड में क्या होता है, वाटर होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो जब ये आपस में विंड के माध्यम से कंटिन्यू ब्रश हियर एंड देयर मूव करते हैं तो उनमें चार्जेस बनते हैं। तो जो चार्जेस होंगे इक्वल अपोजिट बनते हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है फोर्स का। तो ओवरऑल जो भी फोर्स होंगे थंडरिंग का रूप लेंगे। तो जब ये कंडीशन बनती है तो इसमें जो कह रहा है कि जो एयर है वो पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, तो ये बाद में न्यूट्रलाइज की हो जाती है। देखिए इसका सीधा सा कारण है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है एयर का वो नियर अबाउट 1.004 यानी नियरली 1 होता है। तो जब K हमारे एयर का 1 होता है तो मोस्टली ये क्या है कि ये पूरी तरह से इंसुलेटर का काम करती है। तो जब एयर हमारी इंसुलेटर है तो चार्ज में ये इंसुलेटर में चार्ज कहाँ रुकेंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है।
कि जो मेटल होते हैं उसका जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट चार्ज होते हैं। और के जो होता है वो हमारा चार्ज पे डिपेंड करने वाला कंडीशन पे होता है। तो एयर हैज़ अ वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 विच इज़ नियरली टू एज अ इंसुलेटर। तो हवा हमारी, अगर हम ड्राई एयर की बात करें तो वो इंसुलेटर का काम करेगी, लेकिन जो सिंपल हमारी एयर मॉलिक्यूल्स वाटर का कर रखती है तो नॉर्मली वो कुछ हद तक के उसका कम होता है, तो जो डाइलेक्ट्रिक कंडीशन में रहेगा। तो जिस हिसाब से हम कहें तो के कम होने के कारण वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाती है। और दूसरे शब्द में जो इन्होंने कहा है कि व्हाट कीप द एटमॉस्फेयर चार्ज, तो चार्ज जो इस भी हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो ड्यू टू थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स हैविंग सम वाटर ड्रॉपलेट्स डस्ट पार्टिकल। तो ये आपका सिंपली 2-4 सेंटेंस में लिखना है। अभी देखिए कह रहे हैं कि गेस अ पॉसिबल रीज़न वाई वाटर हैज़ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैन से माइका। अब कह रहे हैं गेस करिए कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों इतना ज़्यादा होता है और माइका का क्यों कम होता है। तो जब जितना क्यू के कम होगा उतना उनके बीच में फोर्स कम लगेगा। कैपेसिटर के बीच में जो के भरा जाता है वो डाइलेक्ट्रिक का भरा जाता है, वाटर का तो भरते नहीं। माइका की शीट भरी जाती है, कागज़ भरा जाता है। आप कभी देखिएगा कैपेसिटर को जो ख़राब हो गए हों। तो वाटर पे ऐसा क्या कारण है वाई, तो वाटर एज ऑलरेडी अ पोलर लिक्विड, वाटर खुद एक क्या होता है, पोलर लिक्विड होता है, क्योंकि उसमें जो होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अरेंजमेंट इस तरह होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करता है, इसमें पार्शियली माइनस चार्ज काफ़ी डेवलप हो जाता है। तो ये एज अ डाई इलेक्ट्रिक का काम करता है, यानी डाईपोल की हद तक चला जाता है और यहाँ पास पॉजिटिव इसका बनता है। तो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पास ये खुद एक डाईपोल बन गया है जिसमें खुद से एक चार्ज बने होते हैं, यानी वो चार्ज पार्टिकल होते हैं वाटर में। तो जब ऑलरेडी वो चार्ज पार्टिकल है तो उसका के जो होगा वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल हैं वाटर डाईपोल की तरह बिहेव कर रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो वो एक मेटल की कंडीशन हो गई, जैसे चर्चा किया गया था कि वो के होता है मेटल का बहुत ज़्यादा होता है। तो के जैसा बिहेव, वो मेटल जैसा बिहेव कर रहा है वाटर, तो इसके कारण जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और हमारा जो माइका होता है वो इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर की वैल्यू जो है बहुत ही कम होती है के की। यही इसका रीज़न है। और भी रीज़न हो सकता है, आप बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन द रीज़न दैट आई नो आई ऑलरेडी डिस्कस हियर। A parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitor of 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, यानी सी की वैल्यू पूछना चाह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि जो उसका कैपेसिटेंस है वो इनिशियली 8 पिकोफैरेड का है, तो बताइए अगर उसकी डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए और के जो है डाइलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू 6 कर दिया जाए तो नया उसका क्या वैल्यू होगा। तो सिंपल से एक न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करिए। C इज इक्वल टू, इनिशियली कंडीशन पे लेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट ए। तो हमारा C का फार्मूला होता है जो हमारा ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ द प्लेट, और ये कांस्टेंट जो एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो मान है आपका इसको याद रखना है, कभी कभी दे भी दिया जाता है। तो A एंड D, यानी C डिपेंड ऑन द A एंड C इनवर्सली वेरीज एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन। नाउ द वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ दिस एज 8 picofarad. Now we have to find the value of C, that is when K equal to 6 and D is become half. C equal to K
न्यू कंडीशन पे हम के सी नॉट लेके चलेंगे और सी का मान हमें पता है। तो यहाँ से देखिए क्या है, ये हमने क्वेश्चन की कंडीशन लगा दी कि जो हमारा के है वो सी नॉट पे वेरी करेगा। तो ये बताइए डी हाफ पे न्यू वैल्यू क्या होगी। नोट करके आगे देखिए, जो d/2 था उसका 2 ऊपर ले लिए और इसको सीधे हमने ऐसे सेट कर लिया। ये मान आपको दिया है 8 पिको फैरेड है, तो 8 × 10⁻12 लगा देंगे। इसको लगा के सॉल्व कर लीजिए, के को 6 रख दीजिए। ये 12 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 96 × 10⁻12 फैरेड सिंपल सा हो जाएगा। तो -12 को आप पिको भी कहते हैं, तो स्मॉल पी एफ भी कह सकते हैं, सिंपल से। अब कह रहा है व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर 3 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड अलोंग पी ए बी एज अ फील्ड हैविंग। देखिए क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो इसकी डिफिनीशन आपने पढ़ी होगी, इट इज़ अ point on the two system of charge where the potential is same in all the field in all the point in all the space where the system of charge has uniform electric field and the magnitudes behave as a dipole। तो यहाँ पास पोटेंशियल सेम होगा, वो इक्विपोटेंशियल बनता है और वर्क डन हमेशा जीरो होता है। ये तो आप पढ़ चुके हैं, डिस्कस हो चुका है। अब कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए वेक्टर ऑफ 300 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड अलोंग PQ ABC are 3 points in the field having XY coordinate in meter shown in figure। Calculate the potential difference between point A, B and C B C। तो A B and B C, तो इसकी बात करेंगे। तो जो हमारा पॉइंट है इक्विपोटेंशियल पे, अब यहाँ जो आपको सिर्फ घुमा रहा है, तो सीधे जब इक्विपोटेंशियल कह दिया है तो उसमें जब वर्क की बात करेगा, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होना है, तो जब उस पर तो वर्क ही नहीं होगा। अब जब आप चार्ज मूव कराएंगे तो यहाँ पास बिल्कुल स्पष्ट बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल में जीरो होता है, और जो चार्ज उसको परपेंडिकुलरली मूव कराएंगे XY एक्सिस में, तो नेट क्या होगा हमारा, जीरो आएगा। दैट इज़ चार्ज, यानी जो हमारा चार्ज है वो मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ चेंज इन वी क्या होगा, जीरो होगा। ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इक्विपोटेंशियल है और बार बार कह रहे इक्विपोटेंशियल में डेल्टा वी जीरो होगा, जीरो होगा। तो जब डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन जीरो। फर्स्ट ऑप्शन में तो यही है कि हमारा जो डेल्टा वी है वो जीरो है, और जो वर्क डन होगा वो सेकेंड ऑप्शन में देखें हम क्या होगा। यहाँ सेकेंड ऑप्शन की ओर बढ़ें, तो सेकेंड ऑप्शन में जो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द क्या होता है, निगेटिव ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ये मान लीजिए हम लिख सकते हैं, यानी जो पार्शियल वोल्टेज है वो हमारा डिस्टेंस आर के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, यानी निगेटिव ऑफ चेंज इन वोल्टेज इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें याद रखना है। तो E इज आल्सो लिखिन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, निगेटिव लेना है, निगेटिव है, निगेटिव ऑफ डिफरेंशियल वेक्टर V इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव डेल्टा वी का वैल्यू होता है ओवर अ डिस्टेंस। अब पोटेंशियल की बात करेंगे तो देखिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
वैल्यू रख दीजिए और जो यहाँ पास मान है वो क्या है 7 रख दीजिए, तो -2100 आपका आंसर आ जाएगा 2100 वोल्ट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर लिया गया है। तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो दिस इज़ द कैलकुलेशन फॉर योर आंसर। Now 13 question. Two charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb placed in a point A B 6 meter apart. Identify the equipotential surface of the system. ये न्यूमेरिकल पोर्शन है जो ये कह रहे हैं कि दो सिस्टम ऑफ चार्ज रखे गए हैं, और ये सिस्टम ऑफ चार्ज कैसे रखे गए हैं कि 6 सेंटीमीटर अपार्ट। 6 सेंटीमीटर अपार्ट रखे गए, मतलब है कि जो इनका इक्विपोटेंशियल है वो क्या होंगे। आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा वो क्या आएगा, नेट जीरो आएगा, क्योंकि चार्ज का मान सेम है और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो भी पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनका सेम है, पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगी, तो इक्विपोटेंशियल ऑफ द सिस्टम हमारा आइडेंटिफाई करेंगे तो वो जीरो आएगा। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। डायरेक्शन क्या होगी, तो इसको आपका आंसर लिखना होगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन होगा। जब पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन होगा तो उसको आपको यहाँ से दर्शाना होगा। इन सब केस में होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो अल्टीमेटली आपको ऐसे ही आंसर देना है। 14 क्वेश्चन है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो विशेषताएं इक्विपोटेंशियल की बताना है। तो पहली विशेषता बताइएगा कि पोटेंशियल जो भी होता है इक्विपोटेंशियल में वो हमेशा कांस्टेंट होता है, डिफरेंस उनका जीरो आएगा। जब कांस्टेंट है तो डिफरेंस हमेशा जीरो आता है। दूसरा कह रहा है एक और, हाँ दो बताना था, तो एक आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो होगा, और दूसरा आपको बता ही दिए पोटेंशियल जीरो है, तो दूसरा आप कहेंगे कि उसमें जो भी टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एनी चार्ज मूव कराएंगे तो वर्क जीरो आएगा। सेकेंड कह रहा है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दो डाइपोल बना लीजिए, उनमें जैसे अभी बताएं वैसे ही हो जाएगा। ये आपका डाइपोल बन गया। इधर से जाएंगे, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, फील्ड को चला दीजिए। यही आपका क्या बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस डाइपोल के माध्यम से। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अ वायर। अच्छा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर। तो एक क्वेश्चन जो पहले पार्ट का देखते हैं पहले। दो स्फीयर हमने बना लिया है, ए और बी रेडियस के बनाए हैं, और उनको वायर से जोड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछना चाह रहा है, और उनको क्या किया गया है, चार्ज कंडक्टिंग है, तो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पूछ रहा है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टू चार्ज स्फीयर हैविंग रेडियस ए एंड बी। देखिए ई हमारा E1 हमारा क्या होगा, व्हाट विल द E1, बोलिए E1 क्या होगा, V अपॉन D होगा। अब ये D क्या होगा, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है दो चार्ज के बीच में, लेकिन ये स्फीयर है तो हमें इसको सीधे अभी V से ही करना होगा, इसका रिलेशन बना के नहीं कर सकते हैं।
V1 आप निकालेंगे क्या आ जाएगा, K Q अपॉन A। तो पहला जो स्फीयर A रेडियस का है उसका V निकाल लीजिए V1, फिर V2 हो जाएगा K Q अपॉन B। अब देखिए V2 हमारा क्या हो गया, K Q2 अपॉन B। तो चार्ज हैं तो सेम चार्ज क्यों मान लिया गया। अब आगे कह रहा है कि कनेक्टेड टू द वायर। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर दोनों स्पेयर को वायर से जोड़ेंगे तो दोनों का पोटेंशियल जब तक सेव नहीं हो जाएगा तब तक पूरे चार्ज ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम वन स्पेयर टू अनदर स्पेयर। व्हेन कनेक्टिंग अ वायर द पोटेंशियल बिकम सेम अंटिल द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट सेम ऑन बोथ द स्पेयर। दोनों स्पेयर में, दोनों गोलों में चार्ज का मान जब तक बराबर नहीं होगा तब तक V1 V2 का इक्विलिब्रियम बना होगा, यानी V1 इज इक्वल टू V2 मस्ट बी इम्पोर्टेंट। ये कंडीशन लगाना है तो Q1 अपॉन A1 इक्वल टू पार्ट Q2 अपॉन B। इसको इधर लाइए, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ जाएगा Q1 Q2 A अपॉन B, A अपॉन B हो जाएगा। तो यहाँ पास जो आंसर आएगा Q1 अपॉन Q2 A अपॉन B हो जाएगा। अब चलिए A अपॉन B Q1 Q2 का मान है तो E1 E2 अब यहाँ पास लगा देंगे। क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्टेंस ऑलरेडी देखिए लिखा है ना, Q1 अपॉन A स्क्वायर और Q2 अपॉन B स्क्वायर, क्योंकि E2 का रेशियो लिया गया है तो E2 का मान पलट जाएगा। तो वही आपका यहाँ पास हो गया है, E1 का मान ये हो गया। अब 1 अपॉन E2 का मान है तो ये भी पलट जाएगा, Q2 अपॉन B2 दैट इज़ द E2 एंड 1 अपॉन E2 इक्वल टू BU स्क्वायर अपॉन Q2। सिंपल सी बात, सॉल्व कर दीजिए, हो गया। इसका मान निकाल चुके हैं Q1 अपॉन Q2 का। Q1 अपॉन Q2 का मान निकालें, क्या आया, A अपॉन B आया। जैसे A अपॉन B यहाँ रखेंगे तो E1 E2 का मान क्या हो जाएगा, B अपॉन A। तो सीधी सी बात है यार, E1 E2 इज़ इक्वल टू B बाई A वेयर एज V1 एंड V2 इज़ इक्वल टू A बाई A, यानी Q1 Q2 का मान A बाई B से आया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो आया वो क्या आया, A अपॉन B क्या आया। तो इस तरह हमने ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब कह रहा है यूज़ द रिजल्ट ऑब्टेन टू एक्सप्लेन वाई द चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड ऑफ अ कंडक्टर इज हायर दैन इज फ्लैटर पोर्शन। कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी जो आपके नुकीली सरफेस में बहुत ज़्यादा होती है और बाकी फ्लैट सरफेस में ऐसा नहीं होती है, ऐसा क्यों। तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी होती कहाँ है, सिंपल सा फंडा है यार, क्यों परेशान हो रहे हो। आपकी चाहे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा हो और चाहे आपका सिंपल चार्ज डेंसिटी हो सिग्मा हो, फॉर्मूले पे जाइए, चार्ज अपॉन एरिया। तो एरिया यानी उन्होंने शार्प की बात की है ना, तो जब एरिया शार्प होगा तो जहाँ पास चार्ज क्या होंगे, बहुत मैक्सिमम कंसंट्रेट होकर निकलेंगे ना, जिनको हम स्पार्क भी कहते हैं। तो जब आपका कैथोड एनोड का एक्सपेरिमेंट किया जाता था तो जो आपके अंदर वैक्यूम के अंदर जो नीडल लगाई जाती थी या स्पार्किंग दी जाता था तो उसका जो पॉइंट होता था वो बहुत ही शार्प होता था, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स में इजेक्ट आउट and spill out on the medium to create the sparking, and we have to discuss the canal rays and alpha particles as the experiment in chemistry of। तो उसके हिसाब से यहाँ देखेंगे चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया का मतलब है कि अगर एरिया बहुत कम हो रहा है, लेस हो रहा है, तो जो सिग्मा है वो बहुत ज़्यादा होगा, इन्वर्स वेरी हो रहा है। बस आपका जो फॉर्मूला है इसी से ही आपका आंसर भी है कि जो भी आपका फ्लैटर सरफेस होगा तो एरिया ज़्यादा होगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एरिया बढ़ेगा फ्लैट सरफेस का और नुकीली सरफेस का एरिया घटेगा। दैट्स फाइनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर्स। आप लोग को ये मेरा एफ़र्ट, मेरा टाइम वैल्यूएबल था, मैंने आपके लिए दिया। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू प्रीफर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।